শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। দশম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 85 তাৎপর্যের অন্তদিক অনুচ্ছেদ থেকে শুরু করব। चैतन्य चरितामृत आदि 10.85 purport towards end। सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपया इस चैतन्य चरितामृत का रस पूर्ण आस्वादन करने के लिए मल्टीटास्क मत करिएगा। एक स्थान में शांत होकर बैठ के, हो सके तो वीडियो ऑन करके इसका ध्यान करिए। प्राकृत সহজিয়ারা শ্রীল জীব গোস্বামীর বিরুদ্ধে 3টি অপবাদ প্রচার করে। এই কারণে তাদের কৃষ্ণ বৈমুখ্য হেতু গুরু বৈষ্ণবের চরণে অপরাধের ফলে তাদের সর্বনাশের পথই কেবল প্রশস্ত হয়। তাদের প্রথম অভিযোগটি হচ্ছে, এক সময় জড় প্রতিষ্ঠা লোলু এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নিষ্কিঞ্চন শ্রীরূপ ও শ্রী সনাতনের কাছ থেকে জয়পত্র লিখিয়ে নিয়ে গুরুবর্গের শ্রীরূপ সনাতনের মূর্খতা যাপন করে। শ্রীজীবকেও জয়পত্র লিখে দিতে বলেন, কিন্তু শ্রীজৈব গোস্বামী তা দিতে অস্বীকার করেন। পক্ষান্তরে তিনি সেই দিগ্বিজয়ীকে পরাস্ত করেন। এভাবেই গুরুবর্গের অপবাদকারী অসৎ পণ্ডিতকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করা শ্রীজীব গোস্বামীর পক্ষে সঙ্গত আচরণই হয়েছে। কিন্তু মূর্খ সহজিয়ারা গুরুদেবের মর্যাদা যে কি বস্তু তা না জেনে এই বিষয়ে শ্রীজীব গোস্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে তার এই আচরণ হেতু তৃণাদপি সুনিচতা ও অমানিত ধর্ম অবলম্বন তিনি বঞ্চিত হয়েছেন। তারা জানে না যে নিজের মান খর্ব হলেও তা সহ্য করা হচ্ছে অমানিত্য। কিন্তু যখন হরিগুরু বৈষ্ণবের নিন্দা হয় তখন প্রতিবাদ না করা যে কপট বিনয়, তা বৈষ্ণবোচিত আচরণ নয়, তা হচ্ছে কাপুরুষতা। না বলিয়ে थोड़ा ये समझाइए, नहीं समझ अच्छी ओके, म्यूट करिए। क्या आवाज आ रहा है मोबाइल से? अब एक नया हैंडसेट लेने का बहुत जरूरी है। ओके, कहाँ थे हम लोग? तो ये सब किनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज गूगल हाथ उठाइए ऑनेस्टली। ओके, 4 जन को समझ नहीं आ रहा है, बाकी 31 जन को समझ में आ गया। इसका मतलब 2-4 प्रश्न पूछो। नहीं प्रभु, नहीं। तो ये बताया जा रहा है कि जीव गोस्वामी के प्रति कुछ सहजिया लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं। ठीक है, हाथ नीचे नामिए दिए गुगल हाथ। কি বলছেন নেগেটিভ কেন? 1 নম্বর পয়েন্ট বলছে যে জীব গোস্বামী মধ্যে বিনম্রতা ছিল না। কেন? কারণ কি এক সময় এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এই বৃন্দাবনে আসে, রূপ গোস্বামীর কাছে যায়, গিয়ে বলে আমার সঙ্গে তর্ক করো, না হলে সারেন্ডার করো, সাইন করে দাও পেপারে। রূপ গোস্বামী তো ব্যস্ত, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অনেক সেবা দিয়েছেন। রূপ গোস্বামীর সাথে সাথে সই করে বলেছেন ওকে না।
তুমি দিগ্বিজয় পণ্ডিত, আমি মূর্খ, না সই করে দিয়ে দিয়েছে। সে পরবর্তীকালে সেই দিগ্বিজয় পণ্ডিত যমুনার তীরে গিয়েছেন যখন, তখন দেখে জীব গোস্বামী এক কোনো বালক বসে আছেন, তাকে দেখাচ্ছেন সেই বিজয় পত্র। তো জীব গোস্বামী তো বুঝতে পেরেছে যে তার গুরুদেব এত ব্যস্ত লোক, হাতে হাতে সই করে দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু গুরুদেবের এই এক অভিমানী দিগ্বিজয় পণ্ডিতের সামনে নতমস্তক হওয়া, এটা ওনার সহ্য হয়নি। স্বাভাবিক, এখানে প্রভুপাদ বলছেন কোন বৈষ্ণবের প্রতি যদি কোনো অনাচার হয়, সেটাকে কখনো অন্য বৈষ্ণব সহ্য করতে পারবে না। নিজের প্রতি অনাচার হোক, সেটাকে হজম করে ফেলবে। তখন জীব গোস্বামী সেই দিগ্বিজয় পণ্ডিতকে তর্কে পরাস্ত করেন। তখন দিগ্বিজয় পণ্ডিত বলে, মাই গুডনেস, হ্যাঁ, এই ছোট বালক সে আমায় পরাস্ত করলো, তাহলে এনার গুরুদেব রূপ গোস্বামী কত মহান ব্যক্তি হবে। উনি আমায় সাথে সাথে জয়পত্রে সই করে দিয়ে দিয়েছে, হ্যাঁ, কারণ কি উনি সেবায় ব্যস্ত। হ্যাঁ, আমার খুব অপরাধ হয়েছে তার চরণে। তো সাথে সাথে সেই দিগ্বিজয় পণ্ডিত গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে রূপ গোস্বামীর কাছে। তো রূপ গোস্বামী বলছে, কি লো ভাই, তুমি ক্ষমা কেন চাইছো? আমি তো কিছু করিনি, তোমায় তো সাইন করে দিয়ে দিয়েছি। বলছে, না 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 না, আপনার শিষ্য আমায় পরাস্ত করেছে, তার মানে আপনি কত মহান। বলছে, আমার কোন শিষ্য? বলছে, ওই যে গঙ্গার যমুনার পাশে জীব গোস্বামী বলে। বলছে, আচ্ছা দাঁড়াও, বেটাকে আসতে দাও। তো যখন চলে গেছে, তখন জীব গোস্বামী একটু পরে এসছে। তখন রূপ গোস্বামী বলেছে, তোমার বৃন্দাবনে থাকার কোনো যোগ্যতা নেই। কেন কেন গুরুদেব, কি হয়েছে? তুমি বৃন্দাবনে কি লোককে পরাস্ত করতে এসছো, না নিজে শিক্ষা লাভ করতে এসছো? বেরিয়ে যাও বৃন্দাবন থেকে, বেরিয়ে যাও এখান থেকে। এইভাবে रूप गोस्वामी तिरस्कार करे जीव गोस्वामी। इसके ऊपर बहुत अच्छा नाटक हो सकता है। और फिर रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी मथुरा चला गया। मथुरा में एक कुमीर के गुहा के अंदर छुप नहीं गए, वहां रहते थे और यमुना का मिट्टी और पानी पीते थे, बस। अच्छा है, ऐसे होना चाहिए भक्ति विश्व में मेनू। हम लोग का गंगा किनारे में, हम लोग का कलकत्ता है, मेन्यू में गंगा मिट्टी और गंगा वाटर। भक्ति विश्व में ये मेन्यू रख सकते हैं संडे संडे। हरे कृष्णा। तो ये है घटना। तो आप लोग को किसको किसको लगता है कि जीव गोस्वामी ने अपराध किया है गुरु के चरणों को? क्योंकि उन्होंने तर्क किया उस दिग्विजय पंडित के साथ, उनको परास्त किया। किनको किनको लगता है? जब उनका गुरुदेव ने छोड़ दिया, उनको भी छोड़ देना चाहिए था, है ना मामन जी, माता जी? गुरुदेव ने छोड़ दिया तो उनको भी छोड़ देना चाहिए था। नहीं प्रभु, अगर कोई गलत रास्ते पे है तो उसको सही रास्ते पे भी तो लाना है। तो रूप गोस्वामी नहीं किया, तो गुरुदेव जब नहीं कर रहे तो शिष्य को पाकामी करने का कोई दरकार है? नहीं, तो प्रभु गुरु का अपमान हो रहा है तो उसको नहीं सहना है। अच्छा, तो छोड़ देना। ये दिलीप जगन्नाथ प्रभु का क्या खबर है, क्या क्या विचार? पाकामी করতে নেই আগে, পাকামি করা উচিত হয়নি না? আচ্ছা, यस इंद्राणी माता जी, আপনার কি বিচার? বৈষ্ণব নিন্দা শোনা মহাপাপ, সুতরাং ওনার গুরুদের অপমান করছে, সেটা উনি তার প্রতিবাদ করেছেন। ঠিকই আছে, ওটাই বলছে, নিজের প্রতি অপমান সহ্য করে নেবে, কিন্তু হরিগুরু বৈষ্ণবের প্রতি অপমান সহ্য করা একদম অন্যায়, অপরাধ। ওকে, ক্লিয়ার হলো? জ্যোতির্ময় সীতা মাতাজি। यस प्रभु, थैंक यू। ओके, तो ये जो सहजिया लोग हैं, उन लोग समझ नहीं पाएगा ये बात। आगे लिखছে, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার শিষ্টা অষ্টকে 3 নম্বরে বলেছেন, নাদপি সুনিচেনা তরোরিব সহিষ্ণুনা আমানিনা মানদেনা কীর্তন্যা সদা হরি। নিজেকে পথের পাশে পড়ে থাকা তৃণের থেকেও দিন বলে মনে করে, তরুর থেকেও সহিষ্ণু হয়ে, অমানী হয়ে এবং অন্য সকলকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে নিরন্তর ভগবানের নাম
করা উচিত। ओके, যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা, इसका बारे में आपका क्या ख्याल है इंद्रावती माता जी? यथा योग्य सम्मान क्यों, यथा सम्मान लिखना चाहिए था, यथा योग्य सम्मान क्यों लिखा? इतने छोटे हैं बड़े हैं समान इंद्रावती माता जी है क्या प्रभु? प्रभु होना चाहिए, यथायोग सम्मान तो होना चाहिए। उदाहरण दीजिए, सबको तो एक ही जैसा देना चाहिए ना, झूठा सम्मान नहीं। अच्छा, यस, करुणा राधे मत, सबको तो एक ही जैसा सम्मान देना चाहिए, यथा योग्य क्यों लिखा? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एज पर देयर वो किस मतलब कहाँ तक किस लेवल में है भक्ति में, उसके ऊपर मेरे हिसाब से। सम्मान देने में भी भेदभाव कर रहे हैं आप, वेरी बैड। हाँ, अगर ये देखा जाए कि सोल को सम्मान करना है तो सबके अंदर सोल है, देन यू हैव टू गिव इक्वल ये। लेकिन अगर जैसे हमारे घर में गुरु महाराज आ रहे और एक डिवोटी है, गुरु महाराज को डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा सम्मान करना है। ओके, वेरी गुड, गुड एग्जांपल, यस, करेक्ट। तो हम लोग सोल के विषय सबको जैसे जैसे माता जी ने बताया, वेरी एकदम परफेक्ट, सबके हृदय में भगवान परमात्मा रूप में विराजमान है, लेकिन फिर भी हम लोग भेदभाव करते हैं सम्मान में। यस माता जी बोलिए। हाँ, एग्जैक्टली, चेतना के स्तर पे। तो हम लोग जब सड़क पे जाते हैं, कभी हम लोग कुकुर को दंडवत प्रणाम किया? कोई किया? गूगल हाथ उठाइए। अच्छा, नहीं किया, ओके। लेकिन अगर सोचिए गुरु महाराज आ रहे हैं, सड़क पे आ गया, एकदम जस्ट गाड़ी से उतरा, तो हम लोग फिर सड़क पे सब दंडवत करते हैं ना, या पंचांग प्रणाम करेंगे ना? तो यस प्रभु। कोई कंप्लेन कर सकता है आप भेदभाव कर रहे हैं, देखिए वो डॉक्टर आप प्रणाम नहीं किया, नहीं, तो चेतना के स्तर पे, ओके। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহাপ্রভু যখন জানতে পারেন যে জগাইও মাথায় নিত্যানন্দ প্রভুকে আঘাত করেছে, তৎক্ষণাৎ তিনি ক্রোধে অগ্নিশিখর মতো উদ্দীপ্ত হয়ে সেখানে এসেছিলেন এবং তাদের সংহার করতে উদ্যত হয়েছিলেন। এইভাবেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার নিজের ব্যবহারের মাধ্যমে এই শ্লোকটির প্রকৃত অর্থ বিশ্লেষণ করে গেছেন। নিজের বিরুদ্ধে সমস্ত নিন্দা অপবাদ সহ্য করতে হবে, কিন্তু যখন গুরুবর্গের অন্যান্য বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধে নিন্দা বা অপবাদ হবে, তখন বিনয় অথবা বিনীত হওয়া উচিত নয়, তখন তার বিরুদ্ধে সিংহ বিক্রমে রুখে দাঁড়াতে হবে। এটি হচ্ছে গুরু ও বৈষ্ণবের সেবকের কর্তব্য। যে মানুষ গুরু বৈষ্ণবের নিত্য দাসত্বের তত্ত্ব জানেন, তিনি সেই তথাকথিত পণ্ডিতের তার গুরুবর্গ শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রী সনাতন গোস্বামীকে পরাজিত করার গর্ব যেভাবে খর্ব করেছিলেন, তার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। বুঝা যাচ্ছে শ্রীবাস প্রভু? ভেরি গুড। শ্রীল জীব গোস্বামীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার মানসে প্রাকৃত সহজিয়ারা একটি গল্প তৈরি করেছেন যে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত রচনা করার পর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যখন তার পাণ্ডুলিপিটি জীব গোস্বামীকে দেখান, মানে চেক করানোর জন্য, বুঝতে পেরেছেন, কবিরাজ গোস্বামী চেক করানো के लिए उनको दिया, তখন জীব গোস্বামী তার পাণ্ডিত্য প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হবে বলে মনে করে সেটি একটি কূপের মধ্যে ফেলে দেন। হরে কৃষ্ণ, क्या क्या स्टोरी बनाते हैं लोग। সৌভাগ্যবশত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের একটি প্রতিলিপি মুকুন্দ নামে এক ব্যক্তির কাছে ছিল, তাই পরবর্তীকালে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। এই গল্পটি গুরু বৈষ্ণবের বিরুদ্ধে নিন্দা ও অপবাদ রটানোর একটি জঘন্য দৃষ্টান্ত। এই ধরনের গল্প কখনোই বিশ্বাস করা উচিত না। आप में से किनको किनको लगा कि सत्य बात है?
अच्छा, एक जन हाथ उठा दिया। अच्छा, आपको लगा कि जीव गोस्वामी ने ईर्ष्या के लिए कविराज गोस्वामी का चैतन्य चरितामृत गड्ढे में फेंक दिया। কাকার মনে হচ্ছে এটা সত্যি, এটা হয়েছে? ইয়েস, বলুন প্রভু, মুখার্জি প্রভু বলুন, শিবসঙ্গ প্রভু। প্রভুজি, আমি বলতে চাইছি একটা লাইন ছেড়ে গেল। শ্রী চৈতন্য চরণিত্য রচনা করার পর কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যখন তার পাণ্ডুলিপিত জীব গোস্বামীকে দেখান, তখন জীব গোস্বামী তার পণ্ডিতত্ব প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হবে বলে মনে করেন এবং সেটি কৃতের মধ্যে ফিরে যান। শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তার অন্তত মর্মাহত হয়ে তৎক্ষণাৎ দেহ ত্যাগ করেন। এটা ছেড়ে গেছে। ছুটে গেছে, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাতে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করেন। হ্যাঁ, কারেক্ট, এটা তো ভুলে গেলাম, কেউ প্রতিবাদ করলো না এটার ব্যাপারে, একজনই প্রতিবাদ করলেন। वेरी नाइस, थैंक यू शिवशंकर प्रभु। तो ये सब उल्टो पलटा अपवाद एगुलो रूटे गए। ठीक है जी। किनको किनको लगता है कि जीव गोस्वामी ने फेंक दिया और कविराज गोस्वामी ने आत्महत्या कर दिया, ऐसे हुआ क्या? किंतु ऐसा मार्केट में फैल गया। जैसे मार्केट में फैला हुआ है कि महाप्रभु के पांडरा पीटीए मेरे दिए थे। क्या ये बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है ये बात, ये अफवाह। हिंदी में क्या बोलते हैं? अफवाह। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रूमर, রিউমার্স। ओके, बांग्ला बोले गुजब। अपने अपने मन करा कुछ ऐसे ही, গুজবে কান দেবেন না। ঠিক আছে। শ্রীল জীব গোস্বামীর বিরুদ্ধে প্রাকৃত সহজিয়াদের অন্য একটি অভিযোগ হচ্ছে যে, 2 নম্বর অভিযোগ हो गया, अभी तीसरा क्या है? তিনি ব্রজগোপীদের পরকীয়া রস স্বীকার না করে স্বকীয় রস অনুমোদন করে দেখিয়েছেন যে রাধা কৃষ্ণ সামাজিকভাবে বিবাহিত ছিলেন। अभी तक सबको समझ में आया? दोबारा देखिए, যদি এখনটা না বুঝতে পেরে থাকেন তাহলে আগেরটা আরো বুঝতে পারবেন না। একবার পড়ে নিন। एक बार समझा दीजिए प्रभु जी। तो उन लोग ऐसे अफवाह फैलाते हैं कि रूप गोस्वामी ने शौकियो रस को, शौकियो माने जो संबंध, जैसे विवाहित रस जो होता है उसको स्वीकार किया है, उसको अनुमोदन, उसको प्रमोट किया है। ये भगवान का जो परकीय रस है इसका निंदा किया है। शौकियो रस को ठीक बोला, ओके गुड। परकीय रस को, हाँ ठीक है। ये राधा कृष्ण समाज, और दिखाया कि राधा कृष्ण सामाजिक भावे विवाहित हो। ब्रह्मांड घाट में जैसे कोई बोलता है प्रभु लोग तो विवाह हुआ था, ब्रह्मांड घाट में ब्रह्मा जी तो विवाह कराए थे प्रभु जी, ऐसे अफवाह है। প্রকৃতপক্ষে জীব গোস্বামীর প্রকটকালে তার কয়েকজন অনুগামী ব্রজগোপিকাদের পরকীয় রস अपছন্দ করেন। ठीक है, उनका कुछ अनुगामी थे जिनको ये परकीय रस उनको अच्छा नहीं लगा। তাদের পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য জীব গোস্বামী স্বকীয় রসের সমর্থন করেছিলেন, কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে সহজিয়ারা পরকীয় রসের অজুহাত দেখিয়ে নোংরামি করবে, যা তারা বর্তমানে করছে। इसीलिए उस समय समर्थन किया था जीव गोस्वामी ने कि हाँ परकीय रस ठीक नहीं है, सखीय रस ही बेटर है। लेकिन ये क्यों किया था? क्योंकि कुछ कुछ नेगेटिव व्यक्ति था, उन लोग बोलेगा देखो भगवान परकीय रस कर रहे हैं, हम लोग को भी उनका फॉलो करना चाहिए, हम लोग भी ऐसे ही करेगा। तो इसीलिए जीव गोस्वामी ने परकीय रस को ज्यादा प्रमोट नहीं किया। ये इंग्लिश में कहावत है, डोंट थ्रो pearls in front of a swine. Don't throw pearls माने मुक्त, in front of a swine, क्योंकि वो उसका कदर नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही ये मूर्ख लोगों के सामने परकीय रस अगर आप के बारे में प्रचार, आप परकीय रस को प्रचार करेंगे, प्रमोट करेंगे, तो एक तो वो समझ नहीं पाएगा, उल्टा उसी को खुद आस्वादन करने का चेष्टा करेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए जीव गोस्वामी ने इसको प्रमोट नहीं किया था, यही यहाँ बताया जा रहा है। तो ये लोग भी इस चीज का निंदा करता है। ये 3 प्रकार का निंदा हो गया जीव गोस्वामी के प्रति। यस, करुणा राधे माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। लेकिन वृंदावन में
एक जगह है कि वहां पर दिखाया है, मतलब ब्रह्मा जी आए थे, राधा और कृष्ण का मैरिज पांडित्य में संपन्न विवाह किए दिया था, थे। ब्रह्मा जी ने इन दोनों को विवाह दिया था। तो लेकिन इट इज लाइक मोर हाँ, लाइक, हम समझ गए। तो इट इज मोर लाइक अ चाइल्ड प्ले। दोनों को बुलाया, विवाह दिया था, ब्रह्मा जी ने इन दोनों को विवाह दिया था। प्रकृतपक्षे जब राधा रानी का एक्चुअली विवाह ठीक हो गया था, गोपाल चंपू में ये बात आ रहा है, विवाह ठीक हो गया हाँ, था। हाँ, लेकिन जब पौर्णमासी को जाकर मधुमंगल बोला, अरे राधा रानी का विवाह ठीक हो गया कृष्ण के साथ, हरि बोल, आपके पास सब आएगा एक अच्छा तिथि चुनने के लिए। विवाह का तिथि होता है ना। हाँ, हम्म। तो पौर्णमासी को जब ये बात पता चला, उनको लगा कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि परकीय रस भगवान को आस्वादन नहीं कर पाएगा फिर। तो सखिया रस में जितना आनंद है, लविंग सेपरेशन, विरह, परकीय रस में उससे कोटि कोटि गुण आनंद है, ये तो मिस हो जाएगा भगवान का। तो क्या किया पौर्णमासी ने, बोला नहीं नहीं ये विवाह अभी नहीं हो सकता है, ये बाद में होगा, टाल दिया, क्योंकि अभी तिथि ठीक नहीं है, नक्षत्र। भगवान राधा कृष्ण का विवाह के लिए क्या तिथि, एवरी मोमेंट इज शुभ, लेकिन ऐसे करके उन्होंने टाल दिया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, शुभस्व शीघ्रम, अशुभस्व कालहरण। कालहरण माने अगर अशुभ चीज है उसको क्या करना चाहिए, बात को टालना चाहिए। ठीक है, हम कल आएंगे, आज नहीं, सॉरी, ऐसे करके कल पर टाल दिया। तो ये बात आता है। तो अगर ब्रह्मा जी ने इन दोनों को विवाह दिया, इट वॉज आउट ऑफ चाइल्ड प्ले, इन दोनों को बैठा के विवाह दिया। कभी भी राधा रानी, जैसे हम लोग ऑल्टर में देखते हैं, कभी भी राधा रानी का मांग में सिंदूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि शी इज नॉट वाइफ ऑफ कृष्ण, शी इज पैरामोर। इंग्लिश में पैरामोर बोलते हैं ना, लवर ऑफ कृष्ण। ओके, यस, अच्युत कर्मशत्रु बोलिए। एक प्रभु, और एक किंवदंती ये भी है कि वो जिसके साथ राधा रानी की शादी थी, ही वॉज ड्यूरिंग दैट ब्रह्म विमोहन लीला के समय में हुई थी, एंड दे वर ऑल एक्सटेंशन ऑफ कृष्ण। एकदम एकदम। और ये सब दिया है गोपाल चंपू में, क्योंकि कभी भी राधा रानी को स्पर्श भी नहीं किया, माँ माँ के जैसे सम्मान किया राधा रानी हाँ, को। हाँ। ये सब दिया हुआ है गोपाल चंपू में क्लियरली। यस, अच्युत कर्मशत्रु बोलिए। हरे कृष्ण, वो ये तो सब समय दिखाया गया कि ये गुण विषय है और सब जगह नहीं वर्णन किया जाता है, क्योंकि सहजिया लोग या न जो साधारण लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे। हाँ, वो बोलेगा कि सहजिया लोग क्या बोलते हैं, एक प्रकार का सहजिया है, आओ बाओ लारा लरी शोखी बिंदु। शोखी बिंदु में बोलेंगे, देखिए राधा कृष्ण का अगर आप परकीय रस आस्वादन करना चाहता है, इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। ये सुना है आप लोग ने, टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। ये खीर कैसा बना, ये कैसा पता चलेगा, अरे पहले खाओ तब तो पता चलेगा। परकीय रस समझने के लिए परकीय रस करना पड़ेगा। इन लोग का ये विचार है। हरे कृष्ण। तो इन लोग क्या करते मन हैं, से तो आया कि कृष्ण को ले लीला, रामरा को ले बिला, हाँ, ये जो सवाल आया। वो अलग चीज हो गया। तो वो बोलेगा कि हम लोग भी इसको चखेंगे। चखेंगे कैसे, हम लोग भी खुद ऐसे काम करेंगे, तो हम लोग भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेंगे इस रस को आस्वादन करने के लिए। यही मूर्खता है। हाँ, तो शिव जी का जहर के लिए नहीं करता है। शिव जी ने ऐसे कर क्या कालकूट विष पी लिया था। हाँ, तो तुम लोग भी एक बार इसको टेस्ट करने के लिए, शिव जी को कैसे टेस्ट लगा, तुम भी एक बार पी लो ऐसे करके। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं पिएंगे। ऐसे ही करके सब मूर्खता है। ओके, एक्चुअली इंद्र तृप्ति करने के लिए भगवान को बलि का बकरा बनाते हैं। ये देखो भगवान कर रहा था, हम भी करेगा, नहीं तो हमको समझ नहीं आएगा परोकिया रोष। ওকে, তাদের পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য শ্রীল জীব গোস্বামী স্বকীয় রসের সমর্থন করেছিলেন, কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে সহজিয়ারা পরকীয় রসের অজুহাত দেখিয়ে নোংরামি করবে, যা তারা বর্তমানে করছে। जैसे कभी कभी भगवान भी अवतार लेते हैं और बोलते हैं वेदों का मत मानो, वेदों का मत मानो। क्यों? क्योंकि मालूम है भगवान को कि उस समय के ब्राह्मण लोग वेदों को अजुआत माने एक्सक्यूज देकर मीट ईटिंग कर रहा था कि वेदों में देखो वर्णन है मीट ईटिंग करने, तो हम लोग भी करेंगे। तो भगवान और भक्त लोग भी इंटेलिजेंट है, उनको मालूम है कि क्या किस तरह से करना चाहिए, प्रेजेंटेशन करना चाहिए। ओके, जैसे क्या ये
जशोदा माँ भगवान श्री कृष्ण को बोलते थे ना कि भाई भी सो जाओ, ऐसे कुछ बोलता ना, नहीं तो हालू बिलाई ना क्या क्या कुछ आ जाएगा। आओ बिलाओ हाउ बिलाओ, आओ बिलाओ, हाउ बिलाओ अभी हाउ भी बिलाओ। है वहाँ, वृंदावन में अभी भी है। अच्छा, मिल गया है आपने, तो वो आ जाएगा। तो ऐसे करके डराते थे। हाउ बिलाओ था क्या? नहीं, लेकिन भगवान को समझाने के लिए ऐसे करना पड़ता था उस समय। ये देखना पड़ेगा कृष्ण लीला में हाउ बिलाओ अभी कलयुग में कौन सा अवतार लेके आया है, देखना पड़ेगा ना सत्यभामा माता जी, वो लिस्ट देखिएगा। प्रभु दोनों स्टोन बन गया है, अभी पत्थर का बना हुआ है। स्टोन बन गया, अच्छा। দুর্ভাগ্যবশত বৃন্দাবন ও নবদ্বীপে সহজিয়ারা পরকীয়া রসে কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলন করার নাম করে অবৈধভাবে স্ত্রী সঙ্গ করে, ওই इसका फायदा उठाता है। ভবিষ্যতে যে একটা হবে, ভবিষ্যতে যে এটা হবে তা দর্শন করে শ্রীল জীব গোস্বামী সক্রিয় রস সমর্থন করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে বৈষ্ণব আচার্যেরা তা অনুমোদন করেছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী কখনোই ব্রজের অপ্রাকৃত পরকীয়া রসের বিরোধী ছিলেন না এবং অন্য কোনো বৈষ্ণবেও তা অনুমোদন করেননি। শ্রীল জীব গোস্বামী ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে পূর্বতন বৈষ্ণবাচার্য গুরুবর্গ শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রীল সনাতন গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন এবং শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাকে অন্যতম শিক্ষাগুরু রূপে বরণও করেছিলেন। হরি বল, বলিए प्रभु। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु हम बोल रहे प्रभु, आगे में बताया जीव गोस्वामी परकीया रस के विरुद्ध में थे, फिर यहाँ पर बता रहा है परकीया रस को जीव गोस्वामी परकीया रस के विरुद्ध कभी नहीं थे। तो यही है भारत तो विरुद्ध में नहीं थे, लेकिन स्वकीय रस का समर्थन किया था क्योंकि उनको समझ में आया था कि वहां कुछ ये सब जो नेगेटिव व्यक्ति थे उस समय, इन लोग इसका गलत फायदा उठाएगा परकीया, उसीलिए बोला नहीं परकीया रस को स्वकीय रस ही गए। समझ में आ रहा है तो? नहीं ब्रो, नहीं क्लियर हुआ। अच्छा, और किसको क्लियर नहीं हुआ एक बार में पता क्लियर है तो सत्यभामा माता जी कुछ बोलना चाहिए क्या आप? प्रभु मुझे भी क्लियर नहीं हुआ, मेरा भी प्रश्न है यही वाला। यही वाला प्रश्न। अच्छा, ज्योतिर्मय सीता माता जी आपको भी क्लियर नहीं हुआ? हाँ प्रभु। ओके, और किसी को है जो क्लियर नहीं हुआ? ऑनेस्टली बोलिए, पूछिए, नहीं तो हमको समझ नहीं आएगा कि क्लास का क्या सिचुएशन है। अच्छा, महामंदिर माता जी को भी क्लियर नहीं हुआ। ओके, तो ठीक है, म्यूट कर दीजिए। ये स्वकीय रस क्या है? जो विवाहित पति पत्नी में जो रस आस्वादन होता है। परकीय रस क्या होता है? जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विवाह के बाद बाहर जो अफेयर होता है उसमें जो रस आस्वादन होता है वो परकीय रस है। तो परकीय रस श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, ये भी एक प्रश्न है। इसीलिए क्योंकि विवाह के बाहर अगर कुछ रस होगा तो इसमें चोरी छुपे करना पड़ेगा, हाँ या ना? ठीक ना? तो उसमें विरह भी होगा, उसमें मिलन भी होगा, विरह भी होगा। सखिया में तो विरह का कोई प्रश्न नहीं होता है, मिलन ही मिलन, क्योंकि पति पत्नी सब तो एक ही छत के नीचे रहता है। तो विरह रस परकीय रस में होता है, और विरह रस में जो आस्वादन होता है वो मिलन में उतना आस्वादन नहीं होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं इंग्लिश में, लव इन सेपरेशन इज मच मच मोर देन लव इन यूनियन। अभी तक इतना समझ में आया ज्योतिर्मय सीता माता जी? यस प्रभु। ओके, तो ये जब समझ में आ गया, अभी जीव गोस्वामी में आइए। तो कुछ कुछ वहां का उस समय का नेगेटिव लोग बोलता था कि जीव गोस्वामी ने गलत किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वकीय रस का समर्थन किया, परकीया का समर्थन नहीं किया। तो ये सत्य है, ऐसा हुआ है। लेकिन क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है क्योंकि उनको मालूम था कि ये नेगेटिव व्यक्ति लोग, अगर मैं बोलूंगा कि परकीय रस श्रेष्ठ है तो इन लोग इसका अनुकरण करेंगे और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और सब अलग अलग दूसरे के पत्नियों के साथ विहार करने लगेंगे, इसका गलत फायदा उठाएंगे। बातों में अनैतिकता का प्रचार होगा ये। हाँ, इसीलिए उन्होंने
परकीय रस को प्रमोट नहीं किया, यद्यपि उनको मालूम था कि ये श्रेष्ठ है। समझ में आया सत्यभामा माता जी? जी प्रभु जी। ओके, माधव स्वरूप प्रभु। प्रभु हम बोले बाद में समर्थन क्यों किया, प्रभु ये जानना चाह रहे हैं, बाद में भी समर्थन क्यों किए? वो तो ठीक है, समाज इसका अनुकरण करेगा, वो तो ठीक है, वो तो हमेशा तो समर्थन ही करेगा, मन ही मन में तो समर्थन कर रहा है, परकीय रस श्रेष्ठ है, किंतु उस समय स्थान काल पात्र के हिसाब से प्रचार किया कि नहीं स्वकीय ही बेटर है, क्योंकि वह उस समय नेगेटिव लोग था उसीलिए। तो अगर एक बात बोलो, एक बात बता रहा हूँ, अगर हमको भी अगर हम लोग प्रचार करने जाएंगे सोचिए कोई नया जगह में, वहां पूछेगा कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अच्छा है या हम लोग के स्तर में तो हम लोग के जीव के लिए क्या है, परकीय अच्छा है या स्वकीय अच्छा है? स्वकीय ऑब्वियसली, लेकिन ये सब रस का भाग कब उठता है? भगवान के स्तर पे उठता है। इन जनरल बोलिए समाज में कौन सा ठीक है, स्वकीय या परकीय, क्या होना चाहिए? स्वकीय। तो आम आदमी को बोलिएगा तो स्वकीय के बारे में ही बोलेगा, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन कोई डिवोटी समझ पाएगा कि परकीय रस क्या है, भगवान के विरह में जो रस आस्वादन होता है वो क्या है, वो कोई डिवोटी एप्रिशिएट कर पाएगा। आम आदमी माने वो आम माने मैंगो नहीं, आम आदमी माने जनसाधारण इसको एप्रिशिएट नहीं करेगा। ठीक है, यस बोलून प्रभु। हरे कृष्ण राधे राधे। मीराबाई शौकियाना यदि ये परकीय अच्छी रस मीराबाई की। ओके, এটা একদিন আমরা চর্চা করব मीराबाई ব্যাপারে। वेरी गुड। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे जीव गोस्वामी परकीय रस के कभी विरुद्ध नहीं थे, तो वो तो मन ही मन इस चीज को स्वीकार किए थे ना। तो पूर्ववर्ती तो ठीक है, तो पूर्ववर्ती गुरु वैष्णव सनातन गोस्वामी इनका अनुसरण करते थे, অনুমোদন করেছিল। অনুমোদন मीन एक्सेप्ट, यस ही इज राइट, परकीय रस इज बेटर, बेस्ट। ठीक है, ओके। वो तो मन ही मन करते थे ना, फिर उनको कैसे समझ में आया? हरे कृष्णा दिव्य स्तर में इसको समर्थन कर रहे हैं, तो जन साधारण के लिए ये ना। करेक्ट, वेरी गुड, यस। दिव्य स्तर में सब आचार्य लोग इसको समर्थन करते हैं कि जीव गोस्वामी ठीक किया सबके सामने। उसीलिए क्या बोलते हैं ना हिंदी में, भैंस के सामने बीन मत बजाना, ऐसे कुछ है ना। भैंस के सामने बीन बजाए, भैंस बैठ खगुराए। वैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है डोंट थ्रो पर्ल्स इन फ्रंट ऑफ अ स्वाइन। इसका बंगाली में भी कुछ होगा। इसका बंगाली में क्या है शिवाश्रु? इसका बंगाली वर्जन बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये तो हिंदी हो गया। और क्या बंगाली में कुछ होगा इसका? रतन चेने रतन, সুরে জেনে কচু, এরকম কিছু নাই জানে, বাংলা কিছু একটা হবে হয়তো এর মধ্যে। ঠিক আছে, ওকে আগে बढ़ते हैं। ওই রতনে রতন চেনে, হ্যাঁ সুরে জেনে কচু, এটা এর সঙ্গে মানাচ্ছে না, এটা একটু আলাদা হয়ে গেল। 86 নম্বর শ্লোক। মালির জ্যোতির্ময় সীতামাতা जी बोलिए। हो गया, ओके। मालिर इच्छाए शाखा बहुत बारिल, बोलिए। बारिया पश्चिम देश सब अच्छा दिल। माली कौन है? यस, वृक्ष का मूल भी गौरांग महाप्रभु है और माली भी गौरांग प्रभु। और कौन फल आस्वादन करता है? यस यस, महाप्रभु खुद फल आस्वादन। ये भी भूलिए मत, खुद वृक्ष है, खुद माली भी है और खुद फल भी आस्वादन करता है। ठीक है, सब आया था पहले। तो माली इच्छा है शाखा बहुत बारी लो, परम माली इच्छा है, इसलिए परम लिखा है। देखिए क्योंकि हम लोग भी माली है, इसीलिए परम लिखना जरूरी है। हम लोग माली है या ना? हम लोग क्या अपना भक्ति जीवन का माली नहीं है? हम लोग क्या इसमें पानी और जो भी फर्टिलाइजर नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं ना। वो क्या है? वो साधना है। तो हम लोग भी अपना भक्तिलता बीज को पानी देते हैं, सिंचन वो सब करते हैं ना सब। परम माली कौन है? गौरांग महाप्रभु। इच्छा प्रभावे श्रील रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी शाखा जो पश्चिम शाखा ছিল प्रबल भावे वर्धित हलो, माने बहुत फैला हुआ, प्रचार बहुत हुआ।
बहुत शाखा में नया नया ब्रांचेस हुआ, नया नया भक्ति वृक्ष हुआ, नया नया मेंबर्स बहुत फैला है ये वाला शाखा। এবং বাড়াতে বাড়াতে তা সমস্ত পশ্চিম দেশ আচ্ছাদিত করলো, पूरा फैल गया। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जब ये बुक लिखा गया, जब लिखे हैं, तो क्या उस समय पश्चिम देश में हो, मतलब इसका प्रचार हो चुका था? देखिए पश्चिम देश हम उस दिन भी बताया था, इसका मतलब एक वृक्ष है, वृक्ष का जैसे पश्चिम वाला शाखा, ये पूर्व शाखा, इसको भी ज्योग्राफिकली मत देखने चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद भी इसका कुछ विश्लेषण नहीं दिया इसमें। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोला? पश्चिम माने क्या बोल रहा है, ये वाला जगह, ये वाला मालदा जगह बोल रहा है, किस जगह, वो कुछ हमको मालूम नहीं, क्योंकि दिया भी नहीं है। मेरा पर्सनल अनुमान यही है, सोचिए ये एक वृक्ष है, ठीक है, ये इससे एक शाखा निकला पश्चिम, मैंने हम लोग को समझाने के लिए कि ये एक पूर्व, ये उत्तर, ये दक्षिण, अभी आएगा सब एक एक करके। पश्चिम में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, पूर्व में कोई आएगा, उत्तर में कोई आएगा, दक्षिण में कोई आएगा, समझाने के लिए, टू अंडरस्टैंड द वेरियस ब्रांचेस। ये मेरा अनुमान है। प्रभुपाद जी ने अभी तक कुछ विश्लेषण नहीं दिया, तो इसीलिए कुछ कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। अगला श्लोक 87। ये हिरण्मय गौरांग प्रभु আপনার কি বিচার? আমার বিচার প্রভু ওই মালদা ফালদা যে টাউনগুলো, এই তো চৈতন্য ইয়ে रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब दिग हिसाब से दिए थे। पश्चिम क्यों बोला? पश्चिम क्यों बोला इसको, वेस्ट क्यों बोला? पश्चिम, ये तो पश्चिम में है। जे कौन जगह पश्चिम में है, किसके पश्चिम में है? ये गौड़देश, गौड़देश का पश्चिम भाग में है। तो खुद तो ये गौड़देश का पश्चिम भाग में मालदा आता है, हमको मालूम पड़ता है। वो उड़ीसा जो है पूर्व में है। ओके, मैप का हिसाब में, मैप का हिसाब से, आपका हिसाब से। यस, वेदगामिनी राधा रानी माता जी। प्रभु जी पश्चिम दिशा तो गुजरात और राजस्थान इधर हो उतना सकता भी है। पश्चिम नहीं, तो पश्चिम दिशा तो अमेरिका हो गया। नहीं नहीं, ये तो अपने प्रदेश का बात बोल रहे हैं ना, नहीं सारे प्रदेश को आच्छादित किए, तो प्रदेश में तो अपने देश का ही आएगा। तो मालूम प्रभु वृंदावन, ये राजस्थान, गोस्वामी, सनातन गोस्वामी प्रचार किया। ओके, तो अभी यहाँ क्या बोल रहा है वो समझना पड़ेगा। अच्युत करुणेश्वर प्रभु, यहाँ पश्चिम दिशा नहीं है प्रभु, पश्चिम देश है, तो देश तो वेस्टर्न कंट्री हो गया। तो आप बोलना चाह रहे हैं वहां जाकर भी इन लोग ने बहुत अच्छा फैलाया, इनकी शाखाएं वहां वर्धित हुई। अच्छा, वॉशिंगटन डीसी में और अमेरिका में सब इनके शाखाएं हुआ था। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। सबका अलग अलग। और कोई है पंडित जो अपना तात्पर्य अनुवाद टीका देना चाहते हैं? ओके, अगला आ सिंधु नदी तीर আর হিমালয় বৃন্দাবন মথুরা আদি যত তীর্থ হয়, দুই শাখার প্রেম ফলে সকল ভাসিল, প্রেম ফলা সাদে লোক উন্মত্ত হইল। সিন্ধু নদীর তীর পর্যন্ত এবং হিমালয় পর্বতের উপত্যকা পর্যন্ত विस्तृत হয়ে, মানে শাখা ইতনা बढ़ गया, फैल गया, তা বৃন্দাবন মথুরা হরিদ্বার আদি সমস্ত তীর্থ সহ সারা ভারত জুড়ে विस्तार लाभ করলো। अभी अखंड भारत का बात किया जा रहा है, इसीलिए बी केयरफुल, गुजरात को मत लेगा, वो अखंड भारत और दूर जाता है। अखंड भारत उस समय हमको जितना दूर मालूम था, ये अफगानिस्तान वगैरह ये भी सब भारत में आता था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और ये भी हो सकता है कि भारतवर्ष माने पूरा पृथ्वी का बात किया जा रहा है। भरत महाराज तो भारतवर्ष का राजा था, भारतवर्ष में वो तो पूरा पृथ्वी होता था। बोलिए प्रभु। प्रभु उस समय तो अखंड भारत नहीं था जब ये लोग प्रचार किए हैं। अच्छा, आपको मालूम, मैंने उस समय खंड भारत हो गया था रूप गोस्वामी समय, मैंने
आपको लग रहा है उस समय खंड हो गया था, बांग्लादेश पाकिस्तान सब अलग अलग हो गया था? बांग्लादेश पाकिस्तान तो रिसेंट हुआ है, लेकिन इसके पहले और जो थे जैसे अफगानिस्तान है, मलेशिया। आगे का बात किया जा रहा है, अखंड भारत नहीं था उस समय क्या? ठीक है। किनको किनको लगता है 500 साल पहले अखंड भारत नहीं था? और कोई है? ये तो 500 साल पहले की बात है। हाँ, तो कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं तो 500 साल पहले होगा ना। रूप गोस्वामी ने प्रचार किया तो 500 साल पहले होगा ना। हाँ, रूप गोस्वामी का है। यस, वेद गामिनी राधा रानी माता बोले। प्रभु जी, अखंड भारत तो था लेकिन जाने का साधन नहीं था ना। तो आप बोले प्रीचिंग का, तो अरे भाई उस समय पे प्रचार तो महाप्रभु प्रचार पैदल पैदल किया ना, पूरा दक्षिण भारत किया ना, प्रचार किया ना माता जी। नहीं, बाहर हम बोल रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान, ईरान, इधर जो बढ़ा हुआ है भारत का देश। अभी मालूम नहीं है कहाँ तक, वही हो सकता है कि वहां भी प्रचार किया, मालूम नहीं। यहाँ तो लिखा है सिंधु नदी पर्यंत। सिंधु नदी तो सत्य बात बताओ तो वो तो पाकिस्तान में भी है ना सिंधु नदी। पाकिस्तान से आ रहा है। तो दिया था है उस समय। ओके, मालूम नहीं, उतना डिटेल दिया नहीं। आगे এই দুইটি শাখা, দুইটি মানে কোনটার কথা বলা হচ্ছে? शायद रूप और सनातन के बारे में बताया जा रहा है दोनों। এই দুইটি শাখার ভগবত প্রেম রূপ ফল প্রচুর ভাবে বিস্তারিত হলো এবং এই ফল আস্বাদন করে সমস্ত মানুষ উন্মত্ত হয়ে গেল। পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার তাহা প্রচারিল দোহে ভক্তি সদাচার। পশ্চিম ভারতের অধিবাসীরা সাধারণত বুদ্ধিमान নয়। जितना वेस्ट जाएगा उतना बुद्धिमान है, जितना पूर्व दिख आएगा उतना भक्तिमान, माने उतना बुद्धिमान, भक्तिमान एक्सेट्रा। ये मालूम है ना सबको? किसी के संशय? तो मुंबई हो गया ना प्रभु? पश्चिम से मुंबई हो गया क्या? नहीं, सिर्फ नहीं बोले। এবং আচারশীল নয়, কিন্তু শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রভাবে তারা ভগবত ভক্তি ও সদাচার সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করলো। तात्पर्य एमन नय जे केवल पश्चिम। हाँ बोलिए प्रभु जी, ये बुद्धि नहीं है इसका, ये इंद्र तृप्ति के हिसाब से बोल रहे कि आध्यात्मिक के हिसाब से? आध्यात्मिक ऑब्वियसली। और सत्य बात बताओ तो जरा जागतिक भी, क्योंकि आप प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते थे कि इंग्लिश वेल्थ एंड इंडियन ब्रेन बोथ कॉम्बिनेशन से की वजह से अमेरिका फैल रहा है। अभी आज भी तो वही है ना, आज भी तो वही है। अमेरिका का पास टका है लेकिन बुद्धि है इंडिया के पास, और उसीलिए वहां जाकर दोनों का संयोग हो रहा है। तो देखिए बहुत नासा वासा क्या क्या बन गया उधर। तो इसका मतलब क्या, जितना पश्चिम दिख जाएगा उतना बुद्धि नहीं मिलेगा, और जितना पूर्व दिख जाएगा उतना बुद्धिमान और आध्यात्मिक व्यक्ति मिलेगा। अभी आप बोल सकते हैं कहां से शुरू करूं, पश्चिम माने कहाँ का पश्चिम? तो ये शुरू होता है यहाँ बंगाल देश, अखंड माने बंगाल, अनडिवाइडेड बंगाल से अगर शुरू होगा, यहीं से शुरू होता है एक्चुअली। अनडिवाइडेड बंगाल से ही शुरू होता है। कोई पूछ सकता है ठीक है पूर्व पश्चिम बोला, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? तो मेरा उत्तर है स्टार्टिंग पॉइंट अखंड बंगाल, अनडिवाइडेड बंगाल, इनफैक्ट बांग्लादेश। हरे कृष्णा प्रभु। मैं देवकी माता जी का प्रवचन में सुन रहा था, मैं म्यूट करी। ये बांग्लादेश में अभी भी वर्णाश्रम पालन होता है, अभी भी आज के दिन में भी वर्णाश्रम पालन होता है। उन्होंने बताया था प्रवचन। यहाँ तो पूरा उड़ गया, प्लस माने वर्णाश्रम माने अभी भी 51 परिवार আছে। 51 परिवार माने जानें কি? 51 एक একটা হাড়িতে পুরো फैमिली रान्ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट फैमिली। 51 परिवार, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार। ओके, दिस इज स्टिल प्रिवेलिंग इन बांग्लादेश। ये बंगाल में तो उड़ गया। हो सकता है कि फैमिली एक साथ है लेकिन सबका अलग अलग किचन है, ऐसे ही होता है ना। लेकिन 51 परिवार एखोनो
ওখানে আছে। দিস ইজ সো ये स्टार्टिंग पॉइंट अगर कोई पूछेगा तो ये सबको बांग्लादेश, देयर इज नो डाउट अबाउट पूर्व बांग्ला। दिलीप प्रभु बोलिए। What Bengal thinks today, rest of India thinks tomorrow. हरी हरी हरी, सही है ना प्रभु? एकदम। एखाने क्विज होगा तो माता जी लास्ट में बोलेंगे प्रभु आज क्विज नहीं होगा। ओके, एखाने रोहिलो लगंथ बोलो हरी, एखाने लगंथ बोलो हरि, बोलो हरी हरी जय जय।